रिसोर्सेज के बिना हम काम नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स के अलावा हमें एनवायरनमेंट चाहिए, एक काम करने के लिए, ठीक रिजल्ट देने के लिए एक वातावरण चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए, वी नीड टू हैव इक्विपमेंट ऑल्सो, हमें रेफरेंस मटेरियल्स चाहिए, प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड। सो लाइक दैट वी नीड सेवरल फैसिलिटीज। इन सबको इकट्ठा करके हम we can utilize all of the resources that our equipment, environment, materials, everything, so that we are able to work and take proper results. Now, first thing that the general requirement of open clause of resource. Sir, sound is not clear. Is it not clear? Hello? Yeah, now it is clear. audible to me. It is audible to me. Okay. See, sometimes it can happen. My internet connection can go weak. Sometimes some participants' connection can go weak. So in between there would be issues. If that happens, you can please unmute yourself and tell me. I'll repeat that. Okay? तो अगर बीच में कभी कनेक्शन टूटता है किसी का, मेरा भी टूटे या किसी का टूटे, तो आप अनम्यूट करके मेरे को बोल दीजिए कि मैं दोबारा दोहरा दूंगा वो बात को. Okay. So the first requirement is the laboratory shall have available the personnel, facilities, equipment, systems, support services necessary to manage and perform its laboratory activities. यानी कि ओपनिंग पैराग्राफ है, ये प्रिंसिपल, ये इंटेंट, मैंने जैसे कहा ना कि पहला पैराग्राफ जो होता है किसी भी क्लॉज का वो इंटेंट होता है. तो जो इसका इंटेंट है वो यही है कि लेबोरेटरी के पास एक कॉम्पिटेंट मैन पावर होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो काम नहीं कर पाएंगे. सारी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, इक्विपमेंट भी होनी चाहिए, जो हमारा सिस्टम है, एक प्रणाली है काम करने की, वो भी होनी चाहिए, और जो सुविधाएं हमें उन सब चीजों को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, जैसे कि कैलिब्रेशन हो गई, सपोर्ट सर्विस हो गई, या इस तरह की चीजें जो सपोर्ट सर्विसेज हैं वो भी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम अपने सारे काम को जिस तरह से काम करना है उस तरह से काम हम कर सकते हैं. हमारी लेबोरेटरी जो है ताकि वो प्रॉपर रिजल्ट दे सके, टाइम में टेस्टिंग कर सके. सो द आइडिया इज दैट वी हैव टू मैनेज एंड इंटीग्रेट द एंटायर सिस्टम सो दैट ऑल द थिंग्स दैट वी नीड फॉर गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट्स आर working in synchronization. We are able to utilize all the services that we need, utilize the equipment, so that we are able to get proper results. तो पहला जो है, the first resource, most important resource is personnel. So what does standard say? Standard says all personnel of the laboratory. Well, sir, your internet connection is, I think, not stable today. One second, just let me check. I'll just take a moment. One second. Seems to be stable. Anyway, but your audio is getting disturbed. Should I change my connection? Yeah, no problem. No problem. Then I can. Is it okay now, or do I need to change? Because no, it is okay. At present, it is audible. Okay. So in between, if it happens, it can happen. Okay, then we'll see. Alright. Okay. So basically, all the personnel of the laboratory, either internal or external, that could result in laboratory activities. ये हम चौकीदार की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, we are not talking of the guards, we are talking of the personnel whose work will influence the laboratory activities. Shall act impartially, be competent
and work in accordance with the laboratory management system. This clause refers to those people whose work is important from the point of view of giving proper test results, not other people. हम लोग जो बात कर रहे हैं ये उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं लेबोरेटरी में जिनकी काम से लेबोरेटरी के रिजल्ट्स के ऊपर असर पड़ता है। वो सब लोग जो हैं वो बिल्कुल बिना भेदभाव के काम करेंगे, वो काम करने में सक्षम होंगे और काम जो है लेबोरेटरी के जो प्रोसीजर हैं, जो प्रणाली है काम करने की, उसके हिसाब से काम करेंगे। ये रिक्वायरमेंट है। So when this requirement is there, then हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें लोगों को सक्षम करना है तो सबसे पहले क्या है कि the laboratory shall document the competence requirements for each function influencing the result of laboratory activities, including requirements for education, qualification, training, technical knowledge, skills and experience. Now इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी में वो डॉक्यूमेंट करेगी, यानी कि लिखित में क्या उनको कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट है, कितने व्यक्ति काम करते हैं, उन फंक्शन में उनका की असर पड़ता है लेबोरेटरी रिजल्ट पे, उनकी क्षमता क्या होनी चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंस की क्या होनी चाहिए। दिस इज कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया, द कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच फंक्शन, यानी कि कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया हर फंक्शन का बनाएंगे हम। जिनका की लेबोरेटरी के काम के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर असर पड़ता है, बाकियों की जरूरत नहीं है, उन लोगों का। और क्या क्या चीजें हम डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे हमें किस फंक्शन के लिए क्या एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशन, क्या ट्रेनिंग, क्या नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, क्या स्किल, क्या एक्सपीरियंस चाहिए। अब हमारी तो एक स्पेसिफिक लेबोरेटरी है, है, चाहे वो रिफाइनरी की हो, चाहे वो और बाकी सेंटर की, तो उसमें जो टेस्ट रिजल्ट्स हमें, जैसे मान लो असे करने वाले लोग हैं, उनकी जो हमें क्वालिफिकेशन देखनी है, तो उसमें एक मिनिमम एजुकेशन चाहिए, तो दूसरा कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किसी तरह की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सैंपलर है उसमें एजुकेशन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की स्किल की आवश्यकता है, और जो असेन करता है उसको एजुकेशन की भी जरूरत है और उसको एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। जो सैंपलर है उसको स्किल और एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत है। जो असेन कर रहे हैं उनको एजुकेशन से जो आएगी, उनको टेक्निकल नॉलेज आएगी, वो जो आवश्यकता है। सो इस तरह से हर पोजीशन के लिए जो एक्सआरएफ ऑपरेटर है उसको एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं चाहिए जितने की एक असेन वाले की चाहिए, मगर उसको ट्रेनिंग चाहिए और उसको काम कर सकने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। सो फॉर ईच पोजीशन, whether it's assay master or XRF operator or sampler, there will be a mix, there will be a combination of all these education, qualification, technical knowledge, skills, experience. Some people will require more skills and experience. Some people will require more education, technical knowledge. Depends on the function of the group. तो हम जो काम करेंगे कि उस व्यक्ति की उस काम करने के लिए एजुकेशन ज्यादा होनी चाहिए या टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए या कि स्किल और एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए। सो द लेबोरेटरी shall ensure that personnel have the competence to perform laboratory activities for which they are responsible and to evaluate the significance of deviations. देखो, लोग आमतौर पे normally what happens is कि लोग आमतौर पे कहते हैं कि जी सेइंग तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, हाथ का काम है, कोई भी कर सकता है। सो जब लेबोरेटरी की ये रिक्वायरमेंट है कि लेबोरेटरी निश्चित करेगी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबोरेटरी का काम करने में सक्षम भी हैं, और मेन चीज जो अब ऐड हो गई है, पहले ये नहीं थी, लाल में लिखा है इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिविएशंस, यानी कि उनमें इतनी समझ होनी चाहिए, उनमें
समझ सकने की शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि जब हम कोई डिविएशन करेंगे, यानी कि रास्ते से हट के कुछ करेंगे या कोई हमारी नॉन कन्फॉर्मिटी आ गई, तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या असर पड़ सकता है, ये समझ होनी जरूरी है। जब हम ये समझ की बात करते हैं तो फिर नेचुरली जो हम सेइंग वगैरह करेंगे तो वो कोई भी नहीं कर सकता, फिर वही व्यक्ति कर सकता है जिसको की टेक्निकल नॉलेज हो समझ सकने की, इवैल्यूएट कर सकने की कि डिविएशन का असर क्या है। मान लो डिविएशन जो है हमारी किसी चीज में, हम जब काम कर रहे हैं उसमें हमारी मान लो डिविएशन कोई आ गई, हमने पता चला कि ये हमारी डिविएशन हो गई, तो अब इसका असर क्या पड़ेगा मेरी चीज पे, कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मेरे को वो देखना है। मिसाल के तौर पे मेरी फर्नेस जो है क्यूपलेशन फर्नेस जो है मेरी, वो मेरे को बाद में पता चलता है कि 10 डिग्री मेरे को टेम्परेचर ज्यादा दिखाती है। अगर टेम्परेचर 1050 था तो मेरे को डिस्प्ले में 1060 दिखाती थी। अब इस चीज का असर मेरे काम पे पड़ा या नहीं पड़ा, इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास क्षमता होनी चाहिए, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज इतनी होनी चाहिए मैं समझ सकूं कि इसके ऊपर इसका मेरे काम पे क्या असर पड़ेगा। सो आई शुड बी एबल टू इवैल्यूएट व्हेन आई मेक अ डिविएशन और व्हेन देयर इज अ डिविएशन ऑफ एनी काइंड, what impact does it have on the results. So that kind of knowledge is required. Second, जब मेरे टेस्ट रिजल्ट्स आए, when I get my test results, and if there is a deviation, let's say I was supposed to give some test result and I give a test result. Now, how does that test result, if it is not conforming to the requirements, affect the jewelry that I have evaluated or affect the gold that I have evaluated or I have tested or assayed? तो ये मेरे को ये पता होना चाहिए और मैं समझ सकूं कि मैंने ये जो मेरी डिविएशन हुई इससे क्या असर पड़ेगा। तो ये समझ सकने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक मेरे को कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया बनाना है हर पोजीशन के लिए, कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया हर पोजीशन के लिए बनाना है, हर पोजीशन के लिए कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया के हिसाब से ही लोगों को लेना है। I must make a competence criteria and I must have people filling those positions based on that competence criteria. And जो चीज नहीं लिखी इसमें, दूसरी चीज ये है कि मेरे को ये भी चेक करना है कि वो कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया के लोग अगर मैं लेता हूं तो क्या वो ठीक से काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, कुछ चीजें तो स्पेसिफाइड है, NABL ने भी स्पेसिफाई की हुई है। For some people, they've specified the competence criteria. For example, who can the authorized signatory be? What should be his qualification or experience? उसी तरह BIS ने भी 15820 में स्पेसिफाई किया हुआ है। In IS 15820, BIS has also specified. So some indication has already been given for some positions. For other positions, जो बाकी की positions हैं, जिनके लिए की स्टैंडर्ड्स में या NABL ने नहीं स्पेसिफाई किया, for those we have to decide and take a decision on the competence criteria. And how will you decide on the competence criteria? क्या competence criteria होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? They should be able to perform the function, और उस फंक्शन की क्या क्या टास्क वो करेंगे, उस हर एक टास्क के लिए, उस हर एक काम के लिए कि किस फंक्शन पे क्या क्या काम किया जाएगा, हर एक काम के लिए किस तरह की नॉलेज या किस तरह का एक्सपीरियंस या किस तरह का स्किल चाहिए, उसके वो समझ के हम अपना कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया बनाएंगे। सो एक बार जब हमने कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया बना लिया, कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि इस पोजीशन में, इस फंक्शन पे किस व्यक्ति की क्या ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या रहेगी। तो
स्टैंडर्ड कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द लेबोरेटरी शैल कम्युनिकेट टू पर्सनल देयर ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। तो जब हम ये कम्युनिकेट करेंगे यानी कि हमें ये भी डॉक्यूमेंट करना होगा कि किस व्यक्ति की क्या या किस पोजीशन पे क्या ड्यूटी अथॉरिटी। सो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। वेल साहब नहीं सुनाई दिया ये लास्ट में। अच्छा, ओके। सो बेसिकली द लेबोरेटरी नीड्स टू communicate to the personnel and duty and responsibility of the authority. ये हो जाता है कि तुम कम्युनिकेट करने के लिए तुम डॉक्यूमेंट भी करोगे, यानी कि उसको लिखित रूप में भी आएगा वो। तो हालांकि अलग से नहीं लिखा कि आपको ये लिखित रूप में लिखना है, पर ये ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग है, whatever is the reason for the standard, according to that you will automatically have to document. Okay, so then that means once you have done all this, then you need to have records. So the laboratory shall have procedures and retain records for, ये नया रिक्वायरमेंट है, the laboratory shall have procedures and retain records. अब यहाँ पे documented procedure नहीं लिखा है, it is not stated that it has to be a documented procedure, but there has to be a procedure. You should be able to demonstrate that you have a procedure for that you are doing this work in a systematic manner, and you have to retain records. तो आपको रिकॉर्ड भी रखने हैं किस चीज के? डिटर्मिनिंग द कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो आपने कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया बनाया है वो आपने कैसे बनाया है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, तो जो कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया बनाने के बाद आपने लोगों को उस पोजीशन पे लिया है, हैव यू इवैल्यूएटेड, क्या आपने वो निश्चित किया कि वो लोग जो है उस कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, whether the people who have been selected meet the competence criteria. That record should be there. So how do you demonstrate that? First, you have a competence criteria. How did you demonstrate the competence criteria? How did you make the competence criteria? By defining what will be the authority, duty, responsibility for each position. Then you make the competence criteria for that position. Then you select people who meet the competence criteria. तो यानी कि पहले आप डिफाइन करेंगे कि मेरे हर पोजीशन में क्या काम करते हैं लोग, उस काम कर सकने के लिए क्या क्षमता होनी चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज, क्या ट्रेनिंग, क्या एजुकेशन, क्या स्किल, क्या एक्सपीरियंस, ये सब क्या होना चाहिए, वो मेरा कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया बन जाता है। और फिर जब मैं लोगों को लेता हूं, व्हेन आई सेलेक्ट पीपल, देन आई मस्ट इंश्योर कि वो लोग जो हैं उस कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। यानी कि अगर मैंने लिखा कि मेरा ऐसे इंचार्ज जो है वो कम से कम बीएससी विद केमिस्ट्री होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसको टेस्टिंग करनी है और टेस्टिंग के डिविएशन की सिग्निफिकेंस भी मालूम होनी चाहिए। और ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आएगी जब वो, अगर वो कम से कम बीएससी होगा, तो बेसिक कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट होगी तो उसका आगे। फिर उसके अलावा उसको असेंग आनी चाहिए, तो असेंग आनी चाहिए कि ये या तो ट्रेनिंग मिलेगी, इन हाउस भी हो सकती है, ओके, कहीं पे भी हो सकती है। तो अब मैंने सिलेक्ट किया व्यक्ति बीएससी है विद केमिस्ट्री, तो अब मैं चेक करता हूं कि तुम बीएससी तो हो, क्या तुमने असेंग की है, तुम्हें असेंग का एक्सपीरियंस है? सो नहीं है तो आई विल प्रोवाइड ट्रेनिंग। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई सेलेक्ट अ पर्सन, कैन आई आइडेंटिफाई डज ही हैव एनी गैप्स, तो अगर उसकी क्षमता में मेरे कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया के हिसाब से बेसिक क्वालिफिकेशन मीट करता है, मगर उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना, या उसको ट्रेनिंग जो चाहिए वो नहीं है, तो मैं वो गैप फिल करूंगा। उसके बाद आई हैव टू सुपरवाइज पीपल। तो सुपरविजन कैसे है कि हम कहते हैं कि ठीक है,
बाकी लोग जो हैं काम जो कर रहे हैं उनके ऊपर सुपरविजन जो है, जो असे इंचार्ज है वो असे असिस्टेंट की सुपरविजन करेगा, या जो क्वालिटी मैनेजर है और मार्केटिंग सेंटर्स में वो सुपरविजन करेगा असेइंग वाले इसके XRF के या सैम्पलर की, so that a proper sample goes to the laboratory. So those supervision of personnel has to be done. Then authorization of personnel. In the laboratory में एक ऑथराइजेशन लोगों को देनी जरूरी है, कौन व्यक्ति कौन सी इक्विपमेंट ऑपरेट करेगा। हर किसी को तो इक्विपमेंट ऑपरेट करने को नहीं दे सकते, वी कैन नॉट आस्क जस्ट एनीवन टू ऑपरेट एनी इक्विपमेंट। द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट हैज टू बी ट्रेन्ड फॉर यूज ऑफ दैट इक्विपमेंट। तो जो आदमी जिस इक्विपमेंट को ऑपरेट करेगा उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो उस इक्विपमेंट को ठीक से ऑपरेट करके ठीक से रिजल्ट्स दे सके, सो दैट ही कैन बेसिकली get proper results and ensure that the equipment is giving proper results and use that equipment in a fashion so that it gives proper results. Now once I have done all this, जब एक बारी मैंने ये इनिशियली सब इंश्योर कर लिया, तो then I must monitor the competence of people. तो मेरे को ये नहीं है कि बस ठीक है मैंने एक बारी चेक कर लिया था, जब वो आदमी आया था 10 साल पहले, 10 years ago that person came and he was found competent and so after that he is competent. No, the standard says you have to monitor the competence of personnel. So तो आपको उनकी जो मॉनिटरिंग रिकॉर्ड है वो देखना पड़ेगा कि हमने उनको कैसे चेक किया कि वो जो है अपना काम करने में सक्षम है। जैसे कि इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन, ये अपनी ही लेबोरेटरी में 2-3 लोगों को अगर चेक करवा लेते हैं, अगर मेरे पास 2 लोग हैं असेंग के लिए, एक ही सैंपल या इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग. So these are the different methods by which we can ensure that the people are competent. Same way for sampler, same way for extract, same way for all the activities. So जो लेबोरेटरी है वो अपने लोगों को ऑथराइज करेगी कौन सी एक्टिविटीज. So basically the laboratory has to authorize personnel to perform the specific laboratory activity. Anyone can just not perform just about any activity. Okay? So जैसे कि हमने बोला ट्रेनिंग के लिए, अब ट्रेनिंग के लिए पहले जो थी रिक्वायरमेंट थी in the earlier version of the standard, there had to be procedure for identification of training which was to be documented. यानी कि ट्रेनिंग की जो प्रोसीजर है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग उसको डॉक्यूमेंट करना था, तो इस तरह की नॉन कन्फॉर्मिटी आती थी. आज की तारीख में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये डॉक्यूमेंट करना है जरूरी. स्टैंडर्ड कहता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है जिसके हिसाब से आप कंसिस्टेंटली ऑपरेशन कर सकें. सो नाउ इन अ स्मॉल लेबोरेटरी दैट मे नॉट बी नेसेसरी टू हैव अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, बट देन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज अ वर्किंग प्रोसीजर. अगर मैंने उसका ट्रेनिंग का कुछ है so I should be able to maintain records to show that I am training my people as required. My people are being trained as required. तो नॉन कंफॉर्मिटी जो डॉक्यूमेंट नहीं किया प्रोसीजर, वो नॉन कंफॉर्मिटी आज की तारीख में नहीं रहेगी. आज की तारीख में नॉन कंफॉर्मिटी होगी कि आपका ये प्रोसीजर विजिबल नहीं है ऑपरेशन में. So when you do not document it, the responsibility becomes even greater. यानी कि if there is no documentation requirement but you have to demonstrate, then the non-conformity of the same issue will be now written in a different way. Earlier it was written that such and such training procedure, identification of training procedure is not available. Now they will say that identification of training is not evident, so it will become an operational issue कि आपने ये चीज जो है ये कर रहे हैं, ये हमें नजर नहीं आ रहा. सो और ये प्रमाण नहीं है इसका कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं. सो रिकॉर्ड्स विल हैव टू बी मेंटेन्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्टिविटीज आर बीइंग डन इन एन एप्रोप्रिएट फैशन वे इट इज रिक्वायर्ड. सो which are the specific laboratory activities for which authorization is required?
डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन ऑफ मेथड्स। अब हम लोगों के केस में we have a standard method which has been validated by use over a large number of laboratories over a large period of time. So for us, the modification we are not authorized to make. We are not engaged in R&D for development of methods, and validation has already been done. So this really will not be applicable for our laboratory, whether it is a marketing center or whether it is a refinery laboratory. Well, sir, do we have any other option for connection? मैं अपने फोन से हॉट स्पॉट लेके कर सकता हूँ। हाँ देखिए ना, क्योंकि आवाज बार बार डिस्टॉर्ट हो जाता है। अश्विन भाई, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है। बेल सर, आज आप कोई अलग से ऑडियो डिवाइस यूज कर रहे हैं क्या? मतलब आप नहीं, मैं सीधा कंप्यूटर पे ही हूँ। वही नहीं, जैसे ओके भाई, अश्विन भाई आप अपना अनम्यूट रखिए। आप जब अनम्यूट रखते हैं ना अपना, तब वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आप आपका अनम्यूट रख के वो फिर कंटिन्यू कीजिए, तो आ रहा है बेल सर का आवाज। ये इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं करूं क्या? ओके, हाँ, स्टार्ट या कंटिन्यू। ओके। So now the development, modification, verification and validation of method may not be applicable for us. तो वो ये चीज जो है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड मेथड है जो कि वैलिडेट हो चुका है, ये हमारी लेबोरेटरीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मगर दूसरा जो है ऑथराइजेशन, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी और ओपिनियंस एंड इंटरप्रिटेशंस। अभी हमें कंफर्मिटी को क्लेम करती है, फार्मासी सेंटर कंफर्मिटी को क्लेम करते हैं ना, तभी तो आप बात करते हो। तो फार्मासी सेंटर इज नॉट द प्रोडक्ट, और उसको भी अपना कंफर्म करना पड़ता है। उसकी स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी आती है रिपोर्ट के फॉर्म में, और हॉलमार्किंग सेंटर की स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी आती है हॉलमार्किंग के फॉर्म में। सो वो जो है ऑथराइजेशन किसी को दी जाएगी टू डिटरमिन कि हाँ ये प्रोडक्ट कंफर्म करता है या नहीं करता है, या ओपिनियन देने का या इंटरप्रिटेशन देने का कि इसकी प्योरिटी कितनी है। तीसरा है ऑथराइजेशन रिपोर्ट, रिव्यू एंड ऑथराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। किसको हम ऑथराइज करेंगे कि वो जो है रिपोर्ट्स को इशू कर सके और ऑथराइज कर सके रिजल्ट्स को, कि हाँ रिजल्ट्स ठीक है हमारे। तो समवन हैज टू बी ऑथराइज्ड फॉर दैट। तो ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन के लिए हमें ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। कौन इक्विपमेंट ऑपरेट करेगा उसकी भी ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी, मगर ये जो है ये जो एंड रिजल्ट है वो उसकी ये है, मेथड की, रिजल्ट्स की और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स की। सो देन द फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, first clause as said is a statement of intent, suitable for the laboratory shall not adversely affect the validity of results. ये पहले भी था clause, this clause was there earlier also। यानी कि हमारी जो हमारी लेबोरेटरी है और उसके अंदर जितनी भी हमारी फैसिलिटीज हैं और जो हमने उसमें वातावरण मेंटेन किया हुआ है, वो ऐसा होना चाहिए कि लेबोरेटरी की एक्टिविटी के लिए ठीक हो और उससे हमारे रिजल्ट्स गलत ना आए। तो अब देखिए, कुछ एरिया हॉलमार्किंग सेंटर का या कुछ एरिया रिफाइनरी लेबोरेटरी का एयर कंडीशन होता है और कुछ एरिया एयर कंडीशन नहीं होता है। सो some areas are air conditioned, some are not air conditioned. This is a simple example how some areas we need to maintain to get proper results under air conditioning, and some areas air conditioning is not required. That doesn't make any difference. Okay, the air conditioning is not for human comfort. The air conditioning is for ensuring that the results are appropriate. The results do not get spoiled, get affected because of that. So हमें जब लेबोरेटरी का वातावरण मेंटेन करना है, if we have to maintain the environment of the laboratory,
we have to make sure, depending on the laboratory, that factors like microbial contamination, यानी कि कीटाणु विषाणु हमारे laboratory में उसका असर नहीं पड़ता है। ये मेडिकल लेबोरेटरी होगी उनमें फर्क पड़ सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी होगी उनमें असर पड़ सकता है, इस तरह की जो भी, या और तो और जो डिसइंफेक्टेंट लेबोरेटरी बनाती हैं वो अपने डिसइंफेक्टेंट टेस्ट करते हैं, तो उधर भी उनकी जो लेबोरेटरी है उसमें भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चक्कर है। सो हमारी लेबोरेटरी में नहीं है, मगर यस इन अवर लेबोरेटरी, हमारी लेबोरेटरी में डस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ये हमारे में असर पड़ता है। बाकी और फैक्टर्स भी हैं जो इसके स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, जो कि हमें कंसिडर करने हैं। ये जरूरी नहीं है सारे फैक्टर यही हैं, और भी हो सकते हैं फैक्टर, जैसे कि इन्होंने तो एग्जांपल दिए हमारे लिए, फॉर अस, फॉर आवर लेबोरेटरी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। our equipment is of a nature of electronic equipment. Then electric supply changes, differences in electric supply can cause a problem for us. Humidity, temperature, you're keeping your balances in controlled humidity, temperature. Vibration, your microbalance has to be kept in a anti-vibration platform or table. तो हमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें वातावरण की जो फैक्टर हैं वो कंसिडर करने पड़ेंगे और हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल दोस फैक्टर्स सो दैट आवर लेबोरेटरी फैसिलिटीज एंड आवर लेबोरेटरी रिजल्ट्स आर नॉट अफेक्टेड, एडवर्सली अफेक्टेड बाय दैट। और सबसे पहली काम क्या करना है कि हमें डॉक्यूमेंट करना है कि कौन सी फैसिलिटीज जो हैं, कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं हमें मेंटेन करने की जरूरत है। सो इट्स अ रिक्वायरमेंट दैट वी डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स फॉर फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटी। तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। ओके, देन द नेक्स्ट इज the laboratory shall monitor, control and record environmental conditions in accordance with relevant specifications, methods or procedures, or where they influence the validity of the results. इसका मतलब है कि लेबोरेटरी जो है वो उन्होंने वो एनवायरमेंटल कंडीशंस कंट्रोल कर ली या नहीं कर ली, उनको कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा। जो चीज हम मॉनिटर नहीं कर सकेंगे उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद जो हमने स्पेसिफाई किया है, मान लो हमने टेम्परेचर स्पेसिफाई किया है कि टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 27 ± 2 होना चाहिए, तो हम ये मॉनिटर करेंगे कि हमारा टेम्परेचर जो है 27 ± 2 है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे एंड रिकॉर्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो हम जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। हम करते हैं रिकॉर्ड, हमारा क्या टेम्परेचर था, तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि हमारे क्या एनवायरमेंटल कंडीशन थी और वो एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारी मीट कर रही थी, नहीं मीट कर रही थी रिक्वायरमेंट्स को। देन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर दिस फैसिलिटीज इज कि मेजर्स टू कंट्रोल फैसिलिटीज शैल बी इंप्लीमेंटेड, मॉनिटर्ड एंड पीरियडिकली रिव्यूड। सबसे पहले हमने अपनी फैसिलिटी को हमने डिसाइड कर लिया, बना लिया। अब हमें जो है अपनी फैसिलिटी को हमें मॉनिटर करना है और पीरियडिकली रिव्यू करना है अपनी फैसिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करना है? नंबर 1, एक्सेस टू एंड यूज ऑफ एरियाज अफेक्टिंग लेबोरेटरी एक्टिविटी, यानी कि वी हैव टू, हमें जो है ये निश्चित करना है कि कौन हमारी लेबोरेटरी में आ सकता है, जा सकता है और कौन उसको उस एरिया में काम कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बिना नाम लिए। एक रिफाइनरी ने मेरे को कंसल्टेंसी के लिए बोला और कहा कि हमें आप कंसल्टेंसी दीजिए कि कैसे हम अपना करें। मैंने ठीक है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने जो रास्ता बनाया, रिफाइनरी का रास्ता जो है वो लेबोरेटरी के थ्रू बनाया। मतलब अगर रिफाइनरी में जाना हो, आपको एंटर करना हो, तो पहले एंट्रेंस पे लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के बीच में से लोग आएंगे जाएंगे। तो उनको मैंने कहा
I told those people that you cannot have this kind of thing, which was against the plan that I gave, that you need to have that laboratory area separate from the refinery area. There should be no interference. But they did not agree. So I simply stopped providing them consultancy. I returned their fee and I said that you can go anywhere and you can get it done from anywhere, but I will not be able to do this kind of work. So basically क्या है कि आपकी laboratory आपको impartial रखना है, आपकी in-house laboratory है, the in-house laboratory has to work in an impartial manner. How can you allow every Tom, Dick and Harry to pass through your laboratory? You have to maintain separation from the refinery laboratory. Refinery activities and the laboratory have to be separate. So this is what it means: access to and use of areas affecting laboratory activities. The second thing is prevention of contamination, interference or adverse influences of the laboratory activity. यानी कि जो आपकी लेबोरेटरी की काम कर रहे हो उसमें किसी तरह की कंटामिनेशन ना हो, या किसी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, या कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस ना हो. अब आप जब स्ट्रिप्स बनाते हैं, रोलिंग करते हैं, स्ट्रिप बनाते हैं, तो अगर आप करते हैं उसको फर्नेस के पास जहां पे ये पार्टिंग एरिया में करते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे नाइट्रेट फ्यूम्स हैं, वहां पे लेड फ्यूम्स भी हो सकते हैं. तो वो जो है दैट इज नॉट डिजायरेबल. तो आपको वो जो है वो कंटामिनेशन का चांस रहता है, तो इसलिए आप उसको अलग करते हैं. जैसे कि आपका सिल्वर और गोल्ड की टेस्टिंग है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमारे गोल्ड टेस्टिंग में पॉइजन है. So silver chloride is a poison for our gold testing. So we do silver testing in a separate area and we do gold testing in a separate area. तो एक ही हुड में तो हम दोनों चीजें नहीं करते ना. We don't work in the same hood. We have separate hoods, and to the extent that we ensure that it's not possible for fumes of one to go to the other. तो वो fumes की भी जो है इधर उधर ना जा सके. So वो जो है इंटरफेरेंसेस, एडवर्स इन्फ्लुएंसेस जो हैं, वो हमें निश्चित करना है कि किस तरह से हम उसको प्रिवेंट करेंगे. तीसरा है, द थर्ड पार्ट इज इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन एरियाज विद इनकम्पैटिबल लेबोरेटरी एक्टिविटीज. तो व्हाट आर इनकम्पैटिबल, यानी कि हमें सेपरेशन करना है उन एरियाज का जिसमें कि हमारी लेबोरेटरी की जो एक्टिविटीज है वो इनकम्पैटिबल, यानी कि हमें बेसिकली हमारी इनकम्पैटिबल क्या है, कुछ एरियाज में हमें जैसे कि मेंटेन करनी है सीक्रेसी फ्रॉम अदर पीपल इन द लेबोरेटरी. फॉर एग्जांपल, अगर क्वालिटी मैनेजर जो है वो कोडिंग कर रहा है, सपोजिंग द क्वालिटी मैनेजर इज डूइंग कोडिंग, देन दैट कोडिंग हैज टू बी डन एंड द सैंपल गिवन टू द असेंबली सेक्शन. तो लेबोरेटरी जो है वो असेस सेक्शन को देगी, कोडिंग करके लेबोरेटरी को दिया जाएगा, और वो कोडिंग जो है वो करेंगे, कौन करेंगे, क्वालिटी मैनेजर. तो जो क्वालिटी मैनेजर का जो एरिया है वो जो है वो असे की अलग होना चाहिए. अब दोनों असे इंचार्ज और क्वालिटी मैनेजर एक ही जगह बैठ के अगर करेंगे तो फिर तो वो कोडिंग का कोई फायदा नहीं है ना. देयर इज नो यूज ऑफ दैट कोडिंग बिकॉज यू आर डूइंग टू एक्टिविटीज टुगेदर व्हिच हैव टू बी केप्ट सेपरेट. कोडिंग तो हम इसलिए करते हैं ना, वी डू द कोडिंग जस्ट फॉर दिस रीजन, सो दैट द लेबोरेटरी पर्सनल डू नॉट नो व्हिच इज दैट आइटम. बट इफ वी डू दैट कोडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, देन देयर इज नो सीक्रेसी. So the separation between incompatible laboratory activities has to be maintained. Okay, so जो laboratory coding area है, that will be different, that will be separate from the area where the coded material is to be given and where the coded material will be tested. When the laboratory performs laboratory activities at sites or facilities outside its permanent control, ये clause हम लोगों के लिए applicable नहीं है.
क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर्स को तो अपनी परमानेंट फैसिलिटी और मोबाइल फैसिलिटीज वगैरह अलाउड नहीं है, सिर्फ परमानेंट फैसिलिटी अलाउड है, साइट्स भी अलाउड नहीं है. सेम इज द केस विद रिफाइनरीज. In the refinery only they do not have any site facilities or mobile facilities. So this clause is actually not applicable for us. So we can just simply say that this is not applicable for us. ये हमारे लिए नहीं है ये clause. हमारी जिस तरह का हमारा काम है उस काम के लिए ये नहीं है. जो लेबोरेटरी की इक्विपमेंट है, so laboratory shall have access to equipment including but not limited to measuring instruments, software, measurement standards, reference materials, reference data, reagents, consumables, auxiliary apparatus that is required for correct performance of laboratory activities and that can influence the results. तो ये क्लॉज जो है इक्विपमेंट के बारे में, ओपनिंग क्लॉज, इंटेंट क्लॉज. इंटेंट क्लॉज क्या है कि लेबोरेटरी के पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो अपना ठीक से टेस्ट रिजल्ट्स निकाल सके, और वो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जिनका कि वो उनको कंट्रोल कर सके ताकि उसके रिजल्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है गलत ना हो. और ये क्या क्या हो सकती हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड हैं वो हो सकते हैं, रेफरेंस मटेरियल जो है हमारे वो हो सकते हैं, रेफरेंस डेटा या रिएजेंट या कंज्यूमेबल जैसे क्यूपल वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, रिएजेंट्स को तो आ गया, तो या ऑक्सिलरी अपरेटस, कोई जो एंसिलरी अपरेटस हमें साथ में चाहिए, वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए. दैट मीन्स अवर लेबोरेटरी शुड बी फुली इक्विप्ड विद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लेबोरेटरी एक्टिविटी. यानी कि वो किसी भी फॉर्म में फैसिलिटी चाहिए हो, चाहे हमें इक्विपमेंट हेलो ओके. सो तो वी शुड हैव ऑल द फैसिलिटी so that we are able to function and give proper results. So in the course of those equipment that we have said and the facilities that we have said, we have also mentioned about reference materials. So जो reference materials हैं वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, रेफरेंस मटेरियल हो सकते हैं जिनको कि हम सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल बोलते हैं या स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल बोलते हैं. नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्या करते हैं, हम एक गोल्ड लेते हैं और एक लेबोरेटरी में लेके भेज देते हैं, यू प्लीज टेस्ट वेदर दिस इज 999.9 और नॉट, एंड देन वी यूज दैट एज अ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल. बट एक्चुअली जो सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स, और उनके लिए जो है वो स्टैंडर्ड है ISO 17034. वो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उनको एक्रेडिटेशन किया जाता है और वो जो है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. पर अभी हमारे पास जब तक ये फैसिलिटी नहीं आती है तो तब तक तो हम यही करते हैं कि गोल्ड लेते हैं, उसमें से एक पीस भेजते हैं, वो टेस्ट होके उसका रिजल्ट आता है तो हम मानते हैं कि हमारा बाकी का प्रोडक्ट भी है, ठीक है. But actually, what we do now presently is, in the absence of reference material producers who are accredited, in the absence of those producers, now we have, अभी आ गए हैं लोग जो प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हैं. So, what we have traditionally done is we have taken gold or silver or lead or copper and we have sent it out for testing to a accredited laboratory. And once that is tested, we presume that the rest of the material also from which we sent that piece also conforms. इसमें एक drawback है. There's a drawback in this. Here we are making a basic assumption that the piece of the material that we sent was from a homogeneous chunk. Without testing, हमने टेस्ट नहीं किया कि वो जिसमें से हमने सैंपल भेजा है, we have not tested that the item, the block from which we sent that sample, whether it is homogeneous or not.
but we presume that that is homogeneous. So actually the reference material providers provide certified material after ascertaining its homogeneity, and then they provide this material. So ideally we should be doing that. So ideal conditions में हमें ये लेना चाहिए, and there has been an initiative in this direction. वो एक शुरुआत हुई है, तो अभी देखना है कि वो कैसे चल सकता है. जब कोई लेबोरेटरी ऐसी इक्विपमेंट यूज करती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको इंश्योर करना है कि वो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो हमारी अपनी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स वो मीट करें. बट हमारे केस में, इन द केस in our case, this clause will not be applicable because we are expected to have a fully equipped laboratory. तो एक रिक्वायरमेंट ये है, जबकि लेबोरेटरी जो है, इक्विपमेंट जो है, जो हमारे परमानेंट कंट्रोल में नहीं है, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जो इक्विपमेंट है वो भी उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करे जो कि हमारी अपनी इक्विपमेंट को मीट करती है. पर इसमें क्या है कि हमारे को अलाउड ही नहीं है कि हम कहीं बाहर की इक्विपमेंट यूज करें. हमारी लेबोरेटरी जो है पूरी की पूरी जो है वो इक्विप होनी चाहिए. अब इनमें क्या है कि अभी ये जैसे इक्विपमेंट और फैसिलिटीज की मैंने बात की, तो इसमें किस किस तरह की नॉन कन्फॉर्मिटीज निकलती हैं. एक तो जैसे ये है कि आपका जो एंटी वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर माइक्रो बैलेंस रखा है वो प्रॉपर नहीं है. सो द नॉन कन्फॉर्मिटीज इन दिस सेक्शन ऑफ फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, a typical non-conformity is that proper attention has not been paid to minimize the vibration level of anti-vibration platform on which the microbalance has been installed. So you have to make sure that the anti-vibration platform that you make is such that it is actually able to eliminate vibration. So it should not happen that as soon as you start your generator, that vibration makes the balance unstable. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है जी हाँ जी मेरा सारा पक्का है, सारा कुछ ठीक है और मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल पक्का है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, मगर जैसे ही मैंने जनरेटर ऑन किया वो वाइब्रेशन होने से, उसकी जनरेटरी वाइब्रेशन से वो जो है बैलेंस जो अनस्टेबल हो जाए. जो और एक नॉन कन्फॉर्मिटी का मैंने आपको बता ही चुका हूं पहले कि स्ट्रिप रोलिंग, जो बटन स्क्वीजिंग वगैरह, हैमरिंग वगैरह जो करते हैं वो हम फर्नेस और पार्टिंग रूम के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है नाइट्रस एटमॉस्फेयर है या लेड फ्यूम्स वाला एटमॉस्फेयर है, वो हम उसमें नहीं करते. वो हम अलग से अपना जो एयर कंडीशन जहां पे हमने बैलेंस रखा हुआ है उसी तरफ कर लेते हैं. फिर जो हमारे रेफरेंस मटेरियल्स है, रेफरेंस मटेरियल में भी हमारी नॉन कन्फॉर्मिटीज आती हैं. अगर हमारी रेफरेंस मटेरियल जो है, जो हम जैसे कि हमारा प्रूफ गोल्ड है, प्रूफ गोल्ड जो है अगर उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी या उसकी हमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी, if we do not have the values of uncertainty for the proof gold or we do not have traceability for the proof gold, then again it will be a non-conformity. Okay, so we have to make sure that our facility, these are the two typical non-conformities that we've come across. The next requirement is the laboratory shall have a procedure for handling, transport, storage, use and planned maintenance of equipment in order to ensure proper functioning and prevent contamination or deterioration. अब इस केस में क्या है, हमारी फैसिलिटी तो परमानेंट है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज वगैरह का तो नहीं है, बट द मेन थिंग इज दैट वी मस्ट इंश्योर दैट आवर इक्विपमेंट इज हैंडल्ड. जो हमारी इक्विपमेंट को हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको हम किस तरह से उसको मेंटेन करके रखते हैं, इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए. तो प्रोसीजर का जरूरी नहीं है कि आप लिख के प्रोसीजर रखेंगे. आपने मान लिया कि आपने बनाया कि हम हर महीने
इक्विपमेंट को हम मेंटेन किया करेंगे। तो आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए दिखाने के लिए कि आपने हर इक्विपमेंट को मेंटेन किया। जैसे कि कोई रोलिंग मशीन है, तो उसमें क्या किया कि हर महीने उसको हमने ऑयलिंग ग्रीसिंग की जो आवश्यकता है वो की, और उसको चेक किया कि उसके कोई उसके गरारी कोई खराब नहीं हो रही, उसके रोल्स जो हैं वो स्मूथ हैं। यू नो, वी हैव टू कीप ऑन चेकिंग फॉर इक्विपमेंट। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, we would check that the wires are okay, the earthing is okay. So every month, if you plan and maintain a record, that will become your procedure, that every month I'm checking, I'm doing preventive maintenance. So you have to have a proper record for that. So even when the standard says, जबकि standard कहता भी है कि आपके पास एक procedure होना चाहिए, it does not say that it must be a documented procedure. वो standard ये नहीं कहता कि आपको documented procedure हो। अगर आपने रिकॉर्ड जनरेट किया हुआ है और जो आपके पास रिकॉर्ड है वो दिखाता है कि हर महीने आपको ये काम करना है और आप वो कर रहे हैं, तो वही आपका प्रोसीजर हो गया। कोई डेफिनेट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये प्रोसीजर नंबर सो एंड सो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज़ द स्टैंडर्ड डजंट से दैट यू नीड टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, बट दैट प्रोसीजर, व्हाटएवर प्रोसीजर इज देयर, व्हाटएवर यू हैव एस्टैब्लिश्ड, जो आपने निर्णय कर लिया कि हम ये काम इस तरह से करेंगे, तो वो आपके रिकॉर्ड से नजर आ जाना चाहिए कि आप ये काम इस तरह से करते हैं। The next requirement is the laboratory shall verify equipment conforms to specified requirements before being placed or returned into service. अब placed or returned into service अर्थ ये है कि अगर कोई इक्विपमेंट आप नहीं खरीदते हैं, when you buy some new equipment, first of all you must verify that equipment conforms to the specified requirements. यानी कि जब आप नई इक्विपमेंट लेते हैं तो आप चेक करेंगे कि वो जो इक्विपमेंट मैंने लिया क्या मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने ली फर्नेस क्यूपुलेशन के लिए, सो सपोजिंग आई बाय क्यूपुलेशन फर्नेस, विल दैट फर्नेस बी एबल टू गिव बी स्टेबल एट द टेम्परेचर एट विच आई वांट टू डू क्यूपुलेशन? तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मेरा 1150 डिग्री तक मैं चेक करूंगा कि मेरा जो फर्नेस है वो केपेबल हो 1150 तक जाने की, तभी मैं श्योर हूं कि 150 से 1100 तक मैं काम कर सकता हूं। सो एंड रिटर्न इनटू सर्विस, रिटर्न इनटू सर्विस का मतलब ये है कि अगर कभी मेरी इक्विपमेंट खराब हो जाती है, समटाइम्स माय इक्विपमेंट गेट्स स्पॉइल्ड, और मैं वापस उसको दोबारा यूज करना शुरू करना है एंड आई हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट अगेन, देन आई विल हैव टू चेक वंस अगेन। तो मैं दोबारा से चेक करूंगा क्या वो वाली जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करती है कि नहीं करती है। रिपेयर होने के बाद इक्विपमेंट आई, क्या वो अब ठीक है, डज इट मीट द रिक्वायरमेंट, अब नाउ कैन आई यूज इट। The next requirement is the equipment used for measurement shall be capable of achieving the measurement accuracy or measurement uncertainty required to provide a valid result. अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, if my requirement is of a microbalance which should be able to weigh to 0.001 milligram or 0.002 milligram, the equipment that I have should have that least count, it should be possible to measure to that precision. So इसमें हमारे दो शब्द आ जाते हैं, इसका अंतर देखेंगे, precision and accuracy. What is precision? What is accuracy? ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। Precision is how close are two values that we can measure, यानी कि उसका लीस्ट काउंट कितना कम है, और accuracy है how close is the measured value to the true value. ठीक है, closeness of the values to each other, जो nearest values to each other, वो होती है precision. जब मैं माइक्रो बैलेंस यूज करूंगा, आई एम मोर प्रिसाइज देन यूजिंग अ सेमी माइक्रो बैलेंस. बट व्हेन विल आई बी एक्यूरेट? मैं एक्यूरेट तब रहूंगा जबकि मेरा जो रिजल्ट है वो जो ट्रू वैल्यू है उसके जितना पास होगा वो मैं उतना ज्यादा एक्यूरेट रहूंगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन.
तो जो मैं इक्विपमेंट यूज करता हूँ वो क्या मेरी इक्विपमेंट जो है वो मेरे को जिस प्रिसिशन की जिस एक्यूरेसी के रिजल्ट्स चाहिए वो मेरे को देंगे कि नहीं देंगे, जो मेरे को मेजरमेंट अनसर्टनिटी चाहिए क्या वो मेरे को प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी. सो दिस इज द मीनिंग. सो आई नीड टू हैव इक्विपमेंट, मेरे को नहीं है जिससे कि मैं अपना काम बिना दिक्कत के कर सकूं जिस तरह से मेरे को चाहिए. मेरे को जिस तरह का रिजल्ट चाहिए मेरे को उस तरह के रिजल्ट आ जाने चाहिए. The measuring equipment will be calibrated कब? First of all, जबकि कौन सी इक्विपमेंट मेजर मैं करूंगा कैलिब्रेट, जिस इक्विपमेंट के रिजल्ट जो हैं मेरी टेस्ट पे इफेक्ट करेंगे. सो बेसिकली the measurement accuracy or measurement uncertainty affects the validity of the test result. That equipment will be calibrated. बेल साहब ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी को रिपीट करने के लिए किसी की रिक्वेस्ट आई है. हाँ, अच्छा, दो शब्द हैं, एक है प्रिसिशन और एक है एक्यूरेसी. प्रिसिशन इज द क्लोजनेस ऑफ द टू वैल्यूज टू ईच अदर. हाउ प्रिसाइज एम आई गिविंग द रिजल्ट्स. यानी कि मैं अगर कहता हूं कि मैंने मेजर किया, मेरा वेट है 3.53 ग्राम, तो और मेरा दूसरा जो वेट है दैट इज 3.54 ग्राम्स, तो मेरी प्रिसिशन जो है दैट ये एक प्रिसिशन हो गई. दूसरा जो है दूसरा जो मेरा बैलेंस है उससे मैं कहता हूं 3.5 और 3.6 दो वैल्यूज क्लोज है. तो अब जो है 3.5 और 3.6 इसमें जो डिफरेंस है वो है 0.1 ग्राम का. जो पहले वाला जब 3.53 और 3.54 वो जो डिफरेंस था 0.01 ग्राम का था. तो जो 0.01 ग्राम है उसमें जो दो कंसेप्टिव वैल्यूज हैं वो जो है ज्यादा क्लोज है, तो दैट इज मोर प्रिसाइज. तो जितनी मैं डेसिमल प्लेसेस मेरे बढ़ते जा रहे हैं मैं उतना ज्यादा प्रिसाइज होता जा रहा हूं. दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन. अब माइक्रो बैलेंस जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है सेमी माइक्रो के मुकाबले, बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट. एक्यूरेसी कब होगी? एक्यूरेसी इज द नियरनेस ऑफ द वैल्यू रिपोर्टेड टू द ट्रू वैल्यू. इसीलिए मैं कैलिब्रेट करता हूं. जहां पे मैं कैलिब्रेट करूंगा और मेरी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी कम होगी वहां मेरी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है. Okay, is that clear? Or you want any further elaboration? Yes, Samir Kumar ji, is it clear to you? So regarding measurement uncertainty, can you elaborate? Uncertainty will come later. Measurement uncertainty we will come later, but as of now, what we are saying is that as long as your measurement uncertainty is less, the lesser the measurement uncertainty, the more the accuracy. Okay? Okay. So we will come to measurement uncertainty, a separate issue. That is a separate issue. How to do it and all, we will come later. All right? There's only I'm trying to explain the difference between the two words which people are not usually clear about. What is precision? What is accuracy? Okay? All right. So किस तरह की इक्विपमेंट जो है जो कि हमारे टेस्ट रिपोर्ट पे असर पड़ता है. व्हाट इज द काइंड ऑफ इक्विपमेंट इन अवर लेबोरेटरी व्हिच इफेक्ट्स अवर टेस्टिंग. वन इक्विपमेंट इज व्हिच मेक्स अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल बैलेंस, हम लोग माइक्रो बैलेंस यूज करते हैं. वी यूज माइक्रो बैलेंस फॉर वेइंग. दैट हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. इट इज यूज्ड डायरेक्ट मेजरमेंट दैट हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वेट. दैट वेट इज द बेसिस ऑन व्हिच वी कैलकुलेट द प्योरिटी, द फाइननेस. दूसरी जो इक्विपमेंट है, दूसरी कौन सी है? द इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू मेक करेक्शंस टू मेजर्ड वैल्यूज. फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये ऐसी इक्विपमेंट नहीं होती है. मान लो गैसेस है, यू नो, और लेट्स से पेट्रोल. यू नो, इफ यू गो टू अ पेट्रोल पंप एंड if you tell him to fill 1 liter at 30 degrees will weigh less than 1 liter at 25 degrees. So
when this happens, how do you correct? Because he must give you, so they specify that 1 liter at 27 degrees. So then when same way, if we have studied in chemistry classes, standard temperature conditions, STP we say, NTP, STP, standard temperature and pressure, we convert our measured value of gas volume or liquid volume to the standard conditions. And for those standard conditions, we have a measurement of temperature and pressure. So those are the equipment which are used to make corrections to the measured value. Measured value क्या थी? Measured value थी volume. Volume के लिए हमने calibrated equipment use किया for volume. We used calibrated equipment for volume, but this volume was measured at conditions different from the ones on which it is supposed to be measured. So to correct those, to make a correction, I use a thermometer and I use a barometer to make those corrections. So those thermometer and barometer, they are not making the value, they are not measuring the values, but they are used to make a correction to the measured value. In our laboratory, there is no such equipment. Okay. So we only try to maintain temperature, but there is no correction factor that we apply because of temperature. That my balance is at now at 35 degrees. I was supposed to measure at 27 degrees. So this will be the correction factor. There's no such thing. Okay. But we make a measurement of the temperature so that we ensure that our equipment continues to remain in the operating range of our temperature. And third is, which are those equipment? Those which are used to obtain a measurement result calculated from multiple quantities. तो हमारे केस में ये multiple quantities का भी हम नहीं करते क्योंकि we work on normal temperature. But इसका मतलब ये है, मान लो मेरे को density measure करनी है, now this third requirement for obtaining measurement results calculated from multiple quantities. So when I want to measure density, then the multiple quantities are volume and mass. मेरे को density calculate करनी है, density होगी mass per unit volume. तो मैं एक आइटम का मास लूंगा और उसका वॉल्यूम मेजर करूंगा. तो वो जो कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज जो हैं, जो मैं मास मेजर करता हूं यूजिंग अ बैलेंस, या मैं वॉल्यूम मेजर करता हूं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करके या किसी भी चीज से, तो वो वॉल्यूम की मेजरमेंट और मास की मेजरमेंट मेरे को डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए उन दोनों की कैलिब्रेशन होना जरूरी है सो दैट माय कैलकुलेटेड वैल्यू इज ओके. बट हमारे केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है. फॉर अस वी मेक ओनली अ डायरेक्ट मेजरमेंट and that is the one, so our equipment has to be calibrated for that, and we have to work under certain conditions. So उन conditions के लिए क्या है कि हमने thickness measure करनी होती है of the strip, so our micrometer must be calibrated. All right, then we also have to see the parting acid 1 and 2, they are supposed to be of certain specific gravity, so we use a hygrometer for that. So hydrometer is used for that. Then we also use a balance for mass measurement. So microbalance has to be calibrated. So our equipment is that which makes a direct measurement. We do not have those equipment which are used for making correction factors or any equipment that is used for calculating values. Okay. So once you have this equipment and once you say it has to be calibrated, then naturally the requirement is that the equipment there has to be a calibration program for the equipment. और पहले नहीं था standard में, but now a new requirement has been added to the standard. The laboratory shall establish a calibration program which will be reviewed. ये पहले नहीं था, ये पहले review किया जाएगा. And adjusted as necessary in order to maintain confidence in the status of calibration. Now, what does this mean? This does not mean that I will blindly get my equipment calibrated after every 1 year and I'll say it's okay. No. इसका मतलब ये है कि आप equipment calibrate करते हैं, annually करते हैं, okay. Now you have to review कि 1 साल बाद जब मैंने इसको करा, after 1 year I get it recalibrated, was there any drift
क्या उसकी वैल्यूज फर्क हो गई थी? अगर हो गई थी तो इसका मतलब 1 साल का गैप ठीक नहीं है. आई मस्ट गेट देम कैलिब्रेटेड अर्लियर. इसको मेरे को जल्दी कैलिब्रेट कराना चाहिए था. इतना बड़ा गैप होना ठीक नहीं है. सो जब इतना बड़ा गैप होना ठीक नहीं है और मेरी इक्विपमेंट जब मैंने कैलिब्रेट कराया तो उसमें फर्क आ गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मेरा फर्क आ गया तो मेरे को all the equipment requiring calibration or which has defined period of validity shall be labeled, coded or otherwise identified to allow the user of that equipment to readily identify the status of calibration. तो मेरे को जो मैंने कैलिब्रेट किया है वो मेरी इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन की वैलिडिटी कब तक की है, वो क्या कैलिब्रेटेड उसकी वैलिड है कि नहीं, क्या मैं उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करूं कि नहीं, ये जो है मेरे को इक्विपमेंट के ऊपर लेबलिंग करनी है, कोडिंग करनी है, किसी भी तरह देखना है, ताकि जो इक्विपमेंट मेरी रिलायबल रिजल्ट्स नहीं देनी, मतलब हो सकता है रिजल्ट रिलायबल हो पर मैंने उसको कैलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से मेरे को करना चाहिए था, तो उस इक्विपमेंट को मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा. क्यों आइडेंटिफाई कर लूंगा? ताकि कोई गलती से उसको इस्तेमाल ना करे, so that no one uses that by mistake. So I must identify that equipment, code it, label it, somehow make sure that the user of the equipment are able to identify that the equipment is out of calibration. Whenever any equipment has been subjected to overloading, mishandling, or it's giving questionable results, or is shown to be defective, it has to be taken out of service. It has to be isolated and labeled so that no one uses it. यानी कि अगर कोई इक्विपमेंट मेरी खराब हो जाती है, उसको मैंने मेजर, मान लो माइक्रो बैलेंस मेरा है, कैपेसिटी है उसकी 3 ग्राम, मैंने उसमें गलती से 10 ग्राम का वजन रख दिया, तो वो तो मेरी इक्विपमेंट खराब हो जाएगी ना, मिसहैंडल भी हो गई, खराब भी हो गई. फिर या हो सकता है मेरे रिजल्ट उसके ठीक ना आ रहे हो. सो ऐसी इक्विपमेंट जो है जिसको कि मैंने ठीक से हैंडल नहीं किया या जो मेरे को मालूम है कि ठीक रिजल्ट नहीं दे रही, उस इक्विपमेंट को मेरे को अलग कर देना है और उसको आइडेंटिफाई कर देना है, ताकि उसको कोई इस्तेमाल करे जब तक कि वो रिपेयर नहीं हो जाती और हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो ठीक रिजल्ट देगी. सो देयर हैज टू बी सिस्टम ऑफ आइसोलेशन ऑफ सच इक्विपमेंट. तो सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन that it is not giving proper results and a system of isolation. तो ये जो है हमें 2 सिस्टम अपने करने पड़ेंगे लेबोरेटरी में कि मेरी कौन सी इक्विपमेंट जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, उसको मैं कैसे आइसोलेट करूं. तो जब मेरी इक्विपमेंट एक खराब होगी, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो कैलिब्रेशन हमारी निकल आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जाती है साल से पहले ही, और मैं साल के बाद उसको जब रिकैलिब्रेट कराया तो देखा इसकी तो कैलिब्रेशन खराब है. मान लो फर्नेस जो है मेरी जो टेम्परेचर जो मेरा है दिखा रहा है, वो टेम्परेचर जो है मेरा डिफरेंट दिखा रहा है नेक्स्ट टाइम मैंने साल के बाद उसको कैलिब्रेट कराया तो. सो देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज द लेबोरेटरी शैल एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट और डिविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड शैल इनिशिएट मैनेजमेंट ऑफ नॉन कंफॉर्मिंग वर्क प्रोसीजर. यानी कि अगर मेरे को पता चला कि मेरी इक्विपमेंट आउट ऑफ कैलिब्रेशन है, ये ठीक रिजल्ट नहीं दिखा रही है, तो मेरे को दोबारा जो मैंने काम किया था उस सारे काम के ऊपर मेरे को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इस डिविएशन का, ये आउट ऑफ कैलिब्रेशन होने का मेरी जो काम मैंने पहले किया था उस पर क्या असर पड़ा होगा, और उसको मैं इवैल्यूएट करूं कि उसके ऊपर असर पड़ा है तो फिर मेरे को नॉन कंफॉर्मिंग वर्क प्रोसीजर जो है अपना जो भी मेरा प्रोसीजर होगा उसको मैं उसके हिसाब से अपने काम को ठीक करूंगा. आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मारुति ने अपनी कुछ कार्स जो है रिकॉल की थी. वो रिकॉल की थी इस वजह से क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट जो था आउट ऑफ कैलिब्रेशन था, जिसके हिसाब से उन्होंने मेजरमेंट्स की हुई थी. आई थिंक मेरे ख्याल में स्टीयरिंग रॉड का था या कुछ था, तो उन्होंने वो कार्स वापस मंगवा के दोबारा चेक किया कि वो प्रॉपर है कि नहीं. सो this is what is required, that supposing you come to know that some of your equipment was not functioning properly, was out of calibration or did not give proper results, and you realize that later, then whatever work you have done, that you need to re-examine once again, whether
what was the impact of that, and if you consider there was an impact, then you would see what to do about it. मान लो मेरा फर्नेस है, फर्नेस का मेरा कंट्रोलर है वो 10 डिग्री ज्यादा दिखा रहा है, it's showing me 10 degrees more than what the actual temperature was, but I have set my temperature as 1070, whereas I can set it from 1050 onwards. So if it was 10 degrees less, it would not have made any difference. So that is the way. But if it was a microbalance, and if the microbalance was shown to be out of calibration and it was showing results which are not consistent, then I would like to re-examine. It is not necessary because after all, in a balance, what we require is basically linearity of measurement. हमें जो linear यानी कि difference of weights है वो तो वही रहेंगे ना. My difference of the weights will be the same, even if it is slightly less or slightly more. But मेरे को एक acceptance criteria बनाना पड़ेगा कि मैं कितना उसमें deviation accept कर सकता हूँ. I cannot accept all kinds of deviations. सब तरह की deviation नहीं accept कर सकता क्योंकि उससे मेरे results के ऊपर असर पड़ता है. और ना ही इसका ये मतलब है कि क्योंकि मैंने डिफरेंस देखना तो ये कैलिब्रेशन की क्या जरूरत है, डिफरेंस तो आएगा उतना का उतना. नो, दैट इज नॉट द केस. अब एक और जो है हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन तो हम रोज रोज नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट डू द कैलिब्रेशन अगेन एंड अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली. इट कैन बी डन ओनली वंस इन अ व्हाइल, मे बी वंस इन अ ईयर और वंस इन 2 years. सो वी मेक इंटरमीडिएट चेक्स to maintain confidence in the performance of the equipment, which are to be carried out according to procedure. Now, according to procedure, this is a new requirement, but that does not mean that you write down a procedure. That just simply means that you do those checks at a specified frequency. तो आप एक निर्णय ले लेंगे कि मैं ये वाले जो इक्विपमेंट है इसको मैं हर महीने देखूंगा या हर रोज देखूंगा या हर 3 महीने में देखूंगा. वो क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी से जो मैं कैलिब्रेशन कराऊंगा वो तो साल में शायद एक बार या 2 साल में एक बार ही होगी. So what I do is, for example, for the weights, for measurement weight, which is most critical for me, what we do is we check the performance of the equipment by way of having weights which have been calibrated, and then at the specified frequency, after every interval, we check the balance using those weights to see whether it is giving proper results or not. So that is the manner in which we are able to make intermediate checks. और इसमें, in this clause, we have found there are non-conformities. You know, people specify the frequency at which they are making those checks, but then they do not make those checks. So the best way of doing this is that you have in your laboratory a chart of activities. Which activity is to be done when? For example, the due date of calibration, external calibration, the due date of internal audits, the due date of management review, the due date of making intermediate checks, the due date of preventive maintenance. So these are the kind of things which you need to do. So if you make a chart, annual chart, in which you write down maintenance of this thing, on preventive maintenance of this equipment, and you mark the dates, like an annual planner, or mark the dates for internal audit, or mark the dates for management review, or mark the dates for preventive maintenance, mark the dates for making intermediate checks. If you do that, then you will never miss out. Otherwise, ये non-conformities आती हैं. Non-conformities इस clause में आती ही हैं कि intermediate checks नहीं किए. For example, also हमने ये देखा है कि कई बार क्या होता है कि रेफरेंस मटेरियल जो है उसमें इश्यूज आते हैं. वी विल डिस्कस दोज आल्सो, वो भी हम बात करेंगे नॉन कंफॉर्मिटीज जो आती है. तो जब कैलिब्रेटेड रेफरेंस मटेरियल्स, कैलिब्रेशन और रेफरेंस मटेरियल का डेटा जो है वो करेक्शन फैक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं हमें, अगर मान लो देन कैलिब्रेटेड एंड रेफरेंस मटेरियल डेटा इंक्लूड रेफरेंस वैल्यूज और करेक्शन फैक्टर्स. So in that case,
करेक्शन फैक्टर्स हैव टू बी यूज्ड। ये नहीं है कि मेरे को अगर कैलिब्रेशन आ गया, मेरे पास कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, आई एम हैप्पी। नो, you have to study that calibration certificate and see if you need to apply any correction factors. So the laboratory shall take practicable measures to prevent unintended adjustments to equipment from invalidating results. तो मेरी जो इक्विपमेंट है उसको मेरे को इस तरह से रखना है ताकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ना कर पाए, ताकि मेरी एडजस्टमेंट, कोई ऐसे ही एडजस्टमेंट कर दे तो मेरी बिगड़ जाए, कैलिब्रेशन बिगड़ जाए। सो मेरे को ये अपनी इक्विपमेंट को इस तरह से मेंटेन करना है। वो कैसे मेंटेन होगा? वो ऐसे होगा मेंटेन, अगर मैं उसको हर किसी को यूज नहीं करने दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दूंगा लोगों को यूज करने की, तो मिस यूज नहीं होगी इक्विपमेंट, उसकी इनवैलिड अनइंटेंडेड एडजस्टमेंट नहीं होगी। देन फॉर द इक्विपमेंट हमें किस तरह के रिकॉर्ड रखने हैं इक्विपमेंट के लिए? पहली चीज है कि आइडेंटिटी ऑफ द इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एनी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर एक्सेट्रा। तो यानी कि मेरी कौन सी इक्विपमेंट है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है सॉफ्टवेयर का उसके अंदर। जैसे XRF, कौन सी XRF है और उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है और कौन सा वर्जन है मेरे सॉफ्टवेयर का। मैन्युफैक्चरर्स नेम, टाइप, आइडेंटिफिकेशन, सीरियल नंबर, जैसे हम कहते हैं मेक मॉडल सीरियल नंबर, मेक मॉडल सीरियल नंबर हमारे पास होना चाहिए इक्विपमेंट का। अगर हमारी एक ही तरह की कई इक्विपमेंट हैं तो उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मान लो आमतौर पे तो एक ही माइक्रो बैलेंस होता है लोगों के पास, अगर मान लो किसी लेबोरेटरी में 3 माइक्रो बैलेंस है तो वो तीनों की एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि जब हम यूज करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी इक्विपमेंट से ये रिजल्ट दिए गए। सेकेंड इज एविडेंस ऑफ वेरिफिकेशन दैट इक्विपमेंट कंफर्म विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो जब वो इक्विपमेंट आती है या जब वो दोबारा इक्विपमेंट यूज करते हैं रिपेयर होने के बाद, तो उसमें हमें नोट करके रखना है कि वो इक्विपमेंट जो है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है। और करंट लोकेशन का ये मतलब नहीं है कि मेरी लेबोरेटरी में है। करंट लोकेशन अर्थ ये है कि मेरे पास अगर 3 फर्नेसेस हैं तो कौन सी फर्नेस जो है एक्यूपलेशन के लिए है, कौन सी मेरी एनीलिंग के लिए है, कौन सी मेरी मेल्टिंग के लिए। सो लोकेशन रियली आल्सो मींस दैट विच इज द वन फॉर किस पर्पस के लिए मैं यूज कर रहा हूं। कैलिब्रेशन डेट्स, रिजल्ट्स ऑफ कैलिब्रेशन, एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड ड्यू डेट फॉर नेक्स्ट कैलिब्रेशन। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, ये अगर आप चार्ट बना लें अपनी लेबोरेटरी में, इफ यू मेक अ चार्ट, वेदर यू आर इंप्लीमेंटिंग 17025 2017 और नॉट, अगर 15820 भी कर रहे हैं इंप्लीमेंट, IS 145820 की इंप्लीमेंटेशन में भी यही रिक्वायरमेंट है कि आप उसको कैलिब्रेशन स्टेटस वगैरह मालूम होना चाहिए, टाइम पे कैलिब्रेशन करें। यू शुड बी एबल टू कैलिब्रेट ऑन टाइम एंड नो एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन बिटवीन। And the next requirement, which is a new requirement, is documentation of reference materials, results, acceptance criteria, relevant dates and the period of validity. हमारा जो रेफरेंस मटेरियल है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि क्या रेफरेंस मटेरियल है, क्या रिजल्ट्स हैं, हमारे किस तरह का रेफरेंस मटेरियल हमारे को एक्सेप्टेबल है, उसकी रेलेवेंट डेट्स क्या है, किस दिन टेस्ट कराया, और वैलिडिटी। हमारे जो रेफरेंस मटेरियल हैं उनकी वैलिडिटी कुछ नहीं है, बिकॉज वो स्टेबल मटेरियल हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड सब स्टेबल हैं, उनमें कुछ नहीं होता। तो चाहे वो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल हो या सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल हो, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी हमारे स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। IS 1418 में वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास क्राइटेरिया भी है। केवल जब हमारे पास रेफरेंस मटेरियल का रिजल्ट आता है तो हमें वो इवेल्युएट करना है क्या वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा। वो तो अगर हमें 999.9 PPT चाहिए गोल्ड और अगर उसकी वैल्यू 999.95 आ रही है तो इट इज ओके, और अगर उसकी 998.99 भी आ रही है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा तो क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन जो सर्टिफिकेट होगा वही हमें बता देगा किस कब वो हुआ था, कैलिब्रेट टेस्ट हुआ था और उसकी क्या वैल्यू थी, और वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो सर्टिफिकेट से हमें पता चल जाता है।
हम भूल जाते हैं कि ये हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में जो मटेरियल है। कई बारी मेरे को लोगों को ये जितना स्टॉक है, इसका स्टॉक का रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। जब स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन होता है एंड रिकॉर्ड द स्टॉक इज बीइंग मेंटेन्ड, then someone has to be responsible to ensure that before the documentation of reference material, results, acceptance criteria, relevant dates and period of validity. Now period of validity for us is not important. हमारे लिए period of validity मायना नहीं रखती, क्योंकि हमारे जो reference materials हैं वो stable हैं, gold, silver, copper, lead stable हैं, वो खराब नहीं होते। So but हमारा जो acceptance criteria है that is already specified in the standard IS 1418। और किस दिन वो टेस्ट हुआ, वो relevant date जो है उसके टेस्ट सर्टिफिकेट पे आ जाती है, उसका जो सर्टिफिकेट है उस पे आ जाती है, और जो टेस्ट रिजल्ट्स है वो भी आ जाते हैं, और जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो भी हमारे पास स्पेसिफाइड है। तो हम देख के, उस सर्टिफिकेट को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। Then the next is the maintenance plan for maintenance carried out to date, where relevant to the performance of the equipment. So as I said, maintenance plan जो है, if you have laid down a maintenance plan that you will maintain your equipment on a monthly basis, कि आप हर महीने उसको maintain करेंगे, तो उसके लिए आप चार्ट बना लीजिए। जैसे मैं बोल रहा था, you make a chart and keep it, you will never falter, वो आपके कभी गलती नहीं होगी। और नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ डैमेज, मैलफंक्शन, मॉडिफिकेशन और रिपेयर। तो एक अगर आपने इक्विपमेंट का कार्ड बना लीजिए, या इक्विपमेंट का कोई रजिस्टर बना लीजिए जिसके अंदर आप लिखें जब भी इक्विपमेंट मैलफंक्शन किया या रिपेयर हुआ, यू कीप ऑन एंटरिंग दैट। सो ईदर यू कैन हैव अ लॉग कार्ड ऑफ द इक्विपमेंट, और यू कैन हैव अ register for the equipment to note down whenever the equipment was repaired, or when it was damaged, for how long it was out of service, and all details of this kind. So you will be able to meet this requirement. Metrological traceability was there earlier also and is there now also. Metrological traceability यानी कि मेरी जो measurement है, the results of measurement that I am getting, that should be through an unbroken chain of calibrations. यानी कि हमारे लिए इसका मतलब ये है, हम for our laboratories in simple terms it just simply means get them calibrated through an agency which is accredited by NABL. Simple. आपको उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. You don't have to think about it. Just get your calibrations done by NABL accredited laboratories, calibration agencies. That's all. And you are sure all your traceability requirements are met. So what you need to do is get it calibrated and get the traceability certificate. Actually, traceability certificate is also not required once you're getting it calibrated through an NABL accredited agency, and the certificate carries the NABL logo. That will also not be required, but to be on the safer side, you can get the traceability certificate. Traceability certificate is the calibration certificate of the equipment which was used to calibrate your equipment. यानी कि traceability certificate वो होता है, उस equipment का calibration certificate होता है जिस equipment को calibration laboratory ने use करके आपकी equipment को calibrate किया था. So, और कैलिब्रेशन जो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है, एक्चुअली जो सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइडर हैं वो आर एक्रेडिटेड एज पर ISO 17034, उनको एक्चुअली कॉम्पिटेंट समझा जाता है। और अभी तो ऐसा है कि हम तो मटेरियल लेके और NABL एक्रेडिटेड लैब से उसको टेस्ट करा लेते हैं, एंड देन वी प्रिज्यूम कि बाकी का मटेरियल भी जो है दैट कंप्लाइज। We are only presuming that. We do not have evidence of that, but we are presuming that the material was homogeneous. तो वो जिसमें से हमने भेजा वो homogeneous था,
When metrological traceability to SI units is not technically possible, the laboratory shall demonstrate metrological traceability to an appropriate reference. ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है. हमारी जो कैलिब्रेशंस हैं वो हो जाती हैं, और हमारे जो मटेरियल है वो हमारी ट्रेसेबिलिटी उन मटेरियल्स की या तो NABL accredited लेबोरेटरी के थ्रू हम कराते हैं, या अब जो है आहिस्ता से हमारे जो बन रही हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमारे को रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइडर्स बन रहे हैं, अगर उनसे लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एश्योर हो जाता है. सो हमारे लिए कोई कंसेंसस स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सब दे आर नॉट रिक्वायर्ड. We don't need those. These are for different kind of laboratories. Okay. So now we come to externally provided products and services. We have seen our manpower, we have seen our facilities, we have seen our equipment. Now to use all these, we sometimes need external services. External services like calibration, for example. So the laboratory shall ensure that only suitable external provided products and services that affect laboratory activities are used. हमें केवल वही इस्तेमाल करनी है सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बाहर से जो कि हमारी लेबोरेटरी एक्टिविटीज हमारे काम को अफेक्ट नहीं करेंगे एडवर्सली, वो हमारे काम के लिए ठीक होनी चाहिए. नंबर 1, कौन सी है सच सर्विसेज? दोज विच आर इंटेंडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द लेबोरेटरीज ओन एक्टिविटीज. वो जो कि हमारे अपने काम में यूज होगी. कैसी? जैसे कि हमारा सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है, या हमारे कैलिब्रेशंस हैं हमारी इक्विपमेंट की, या दूसरी जो डायरेक्टली कस्टमर को दी जाती है. ऐसी हमारी कोई सर्विस नहीं है जो कि हम बाहर से लेके और कस्टमर को डायरेक्टली दें. हमारी जितनी भी सर्विसेज हम बाहर की यूज करते हैं, ऑल द सर्विसेज दैट वी यूज फ्रॉम आउटसाइड, none of them are given directly to the customer. We use them for our own purpose to ensure that our equipment continues to work well, remains under calibration, to also assure that we are using proper reference materials so that our results are okay. So all the services that we use are basically for the support of the operation of the laboratory. Okay. And the laboratory shall have a procedure and retain records. तो ये जो है have a procedure and retain record, यानी कि हमें demonstrate करना है, we have to demonstrate how we are doing the work. Records are evidence of the manner in which the work was done. जो हमारे procedures होते हैं वो बताते हैं how the work will be done. That means our procedures tell how we have decided we will do the work, and records demonstrate how the work was done. And when we match the two, then we determine whether the work was done as we had stated in our procedures or not. So for externally provided products, we should have a procedure and retain records for what? For defining, reviewing and approving laboratories requirements for externally provided products or services. यानी कि first I was defined. जैसे कि मेरे पास तो what are the things? I need to buy water, I need to buy cupels, I need to buy acid, I need to buy certified reference materials, or I need to get my materials certified, and I need calibration services. These are the things that I do. So I have to define, for example, cupels. When I want to buy cupels, then what are the kind of cupels I need to buy? I buy magnesium oxide cupels, okay. But then is that sufficient for me? Or should I also check that the cupel is able to absorb at least half its mass of lead? That means if it is a 200 gram cupel, is it able to absorb 100 grams of lead? Then if I need to buy distilled water, I need to buy acid. What do I need? I need to see that it is free from suspended matter. I need to see that it is free from halides. So that then after having defined what I need, then I need to define a criteria for its evaluation. The criteria for evaluation will be the same.
Okay, for these products. But for the service provider, then I need to define the evaluation criteria. I must get delivery on time. The quality must be okay. So if someone is providing me very cheap product, but half of the time his product fails, and then I have to send it back, he's not a reliable service provider, external provider. So I should not buy from him. So I will make a performance evaluation and re-evaluation method, which means I must evaluate and re-evaluate my external provider periodically. And for that, I must maintain a record. Then when I buy those items, when I buy those products, then I must have a record to show that when I purchase that item, I verified that that externally provided product and service conform to the laboratory's requirements. यानी कि जब मैं बाहर की चीज लेता हूं, उसको मेरे को वेरीफाई करनी है कि ये जो मैंने चीज ली है, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है कि नहीं करती है. एंड देन ये करने के लिए सबसे पहले लेबोरेटरी को कम्युनिकेट करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर को कम्युनिकेट करना. यानी कि आई मस्ट मेक अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई विश टू हैव. मेरे को अपने प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन बनानी पड़ेगी कि मेरे को क्या चाहिए, और मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है. सपोजिंग मैं उसको बोलता हूं कि मेरे को हैलाइड फ्री होना है, इट शुड बी हैलाइड फ्री, माय एसेट शुड बी हैलाइड फ्री. सो हाउ विल आई चेक? आई चेक इट विद माय सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट का ड्रॉप डालता हूं और उसमें सफेदी नहीं आती है, इफ इट डज नॉट रिजल्ट इन टर्बिडिटी, इफ अ ड्रॉप ऑफ silver nitrate does not result in turbidity, then that is an acceptable asset. Okay, competence including any required qualification of personnel, इसके तो हमें जरूरत नहीं है, बाहर के लोगों से हम personnel नहीं लेते हैं. Okay, so and we do not perform anything at the external provider's premises. We do everything in house. So these two C and D will not be applicable for us. We don't have to do anything. Think about it. Okay. So this finishes the externally provided products and services. So this is our resource criteria. This is over. Next is the process requirements. So